Listen here carefully. A question is, declare a character array of size 5, accept the characters into the array and count the number of lowercase vowel letter in the array and print. Means I have to accept the array. तो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी पहले, और किसकी डिक्लेयर करनी पड़ेगी? कैरेक्टर की. कैरेक्टर की एरे मींस कैरेक्टर डेटा टाइप, and size is what? 5 characters ki array I have to declare over here. Okay, so how I will write? Public static void main, and here I'm going to make the object of the scanner. So before that, import java.util or scanner, anything you can use. Then after that, public static void main scanner sc equals to new scanner system.in. Then here I'm going to declare the array. Suppose care arr equals to new care. अब what the mistakes you are making? यहाँ पे array बना रहे हो character की, and here in the question it is given character array, और यहाँ पे हम दे रहे हैं integer int on this place. So it would be wrong कि अगर यहाँ पे मैंने integer दे दिया तो. Okay, so this is the array of the character, तो character की array होनी चाहिए. यहाँ पे size नहीं दिया 5, यहाँ पे size दे दिया 5. और these the same question, same declaration question I have asked in the section A also. ठीक है? So how to declare the array? Declaration means because it is the user defined data type. तो new keyword is must to declare it, not to initialize. देखो दोनों में difference है. Initialization is a different and declaration is different. When you are going to declare array of any data type, you must have to use the new keyword, like we are making the object of the class, because class is also the user defined data type, और हम उसका object बनाते हैं तो भी हमें new keyword use करना पड़ता है. Same ऐसे ही we have to use the new keyword. और character data type की है इसलिए care. और जो भी ये array है, ये compiler को कैसे पता चलेगा? ये square brackets से, because that's why square brackets is compulsory. Okay, and then afterwards in the last उसी डेटा टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं साइज. आई होप आई एम क्लियर हियर. ओके, नाउ आफ्टर इट एरे बन गई. नाउ यू हैव टू एंटर इन दिस एरे. तो एरे में जब भी इनपुट कराना है तो हमें फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा. और इंट आई इक्वल्स टू 0 i less than 5. अब now it is given already ना कि 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट ही है ना, तो जरूरी नहीं है कि लेंथ निकालें. एंड इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि लेंथ निकालो. जब लेंथ निकालनी नहीं है तो फिर इफ यू आर श्योर कि लेंथ कैसे निकालने, देन ओनली राइट दैट सेंटेंस. अदरवाइज डू नॉट राइट दिस सिंटैक्स. व्हाट यू आर राइटिंग, पे अटेंशन हियर एवरीवन. ऐसे int len equals to arr dot length है ना, और ये पैरेंथेसिस लगा दिया. दोनों में से किसी भी प्रोग्राम में ये सब किया. ये पैरेंथेसिस लगा दिया का मतलब क्या हुआ? लेंथ इज द फंक्शन, लेंथ इज द फंक्शन, और फंक्शन तो वो स्ट्रिंग का है, नॉट एरे. एरे की लेंथ निकालने के लिए एरे फंक्शन, लेंथ फंक्शन नहीं लगाते. That I have given in the important question also, that write the difference between the length and length, ये वाला length. Okay, and what is the difference between, you have to keep remember all this thing. int len equals to arr dot length, ये
That is the way to find out the length of the array, because now here this length, ये LENTH length जो लिखा है, that is the property of the array, not the function of the array. Okay, whereas this one length is the function of the string. Okay, तो पता कैसे चलेगा function है? Because see, this length is followed by the parenthesis. It means it is the length function. Okay, and it is not followed by any parenthesis. It means it is the property. So this first one is the way to find out the length of the array. अब वो कोई सी भी लेंथ हो, इस मींस किसी भी डेटा टाइप की एरे हो, it can be the string data type of the array, it can be the character data type of the array, but this first one is the correct thing. ठीक है? So next time I don't want any type of the mistake in calculating the length of the array or calculating the length of the string. अगर string की length calculate कर रहे हैं तो ये first वाली statement का मतलब है यहाँ पर कि ये लेन वेरिएबल के अंदर लेंथ कैलकुलेट होकर आएगी. लेंथ मींस नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट होकर आएंगे किसके? ARR के. एंड ARR यू हैव डिक्लेयर्ड एज द एरे. बट इफ यू आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट int len ARR डॉट लेंथ, सेकेंड स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये ARR आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, नॉट द एरे. Okay, in this string you are accepting the values, या इनिशियलाइज करवाइए या कुछ भी किया है, देन उसकी लेंथ कैलकुलेट करके इस लेंथ में डाल रहे हैं. both the sentences are different. और इस प्रोग्राम में हमें जो रिक्वायर है, वैसे तो ये दोनों ही रिक्वायर नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5 ऑलरेडी गिवन ना. तो ऑलरेडी जब पता है और इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो फिर क्यों निकालना, राइट? सो हियर आई एम राइटिंग ओवर हियर ये टू राइट टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एरे अगर यूज करना है, और ये वाला टू रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा. ठीक है? I'm giving here comments, and both the statements are not required right now in our program. ठीक है? Now the for loop is started. Now in this for loop I have to accept the array. ARR I have declared, then I, then equal, then sc dot next. ये sc dot next से तो सिर्फ एक वर्ड इनपुट होगा. What I have to input? Character. So dot care at 0. 0 is the index position. Okay. So ARR I ये इनपुट हो गए. इनपुट लूप क्लोज, यहाँ पे इनपुट लूप क्लोज. ओके, एंड हियर आई कैन राइट कि भाई हर बार मैसेज आए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ लेटर और एंटर द कैरेक्टर, जो भी. एंटर द कैरेक्टर, राइट? ओके, दे कैरेक्टर इनपुट हो गया, देन यहाँ पर मेथड क्लोज हो गया. बट अभी कैरेक्टर की एरे बन गई है और कैरेक्टर इनपुट हो गए. नाउ व्हाट आई हैव टू चेक? आई हैव टू चेक दैट ये जो लेटर जो भी आया है, ये कैरेक्टर आया है, वो वोवेल है या नहीं है. नाउ टू थिंग यू कैन डू. एक और फॉर लूप यूज कर सकते हो, है ना, और एक एक कैरेक्टर फैच कर सकते हो, या फिर यहीं पर ही इसी के अंदर ही जो भी कैरेक्टर आ रहा है एरे ऑफ आई में, उसे चेक करा लो. दूसरे लूप की भी जरूरत नहीं है. तो सी ओवर हियर, यहाँ पे आई हैव टू डिक्लेयर वन काउंटर वेरिएबल, सी काउंट वोवेल.
काउंट v, है ना. सो हियर इन द काउंट v इक्वल्स टू 0. ठीक है. देन आफ्टर इट काउंट v if then ARR I equal A. Yes, A. ठीक है. इक्वल A मीन्स नहीं, लोअर बोला ना तो स्मॉल वाला A. और देखो क्योंकि सिर्फ लोअर काउंट करने हैं तो देर इज नो नीड टू मेक दी कन्वर्ट द कैरेक्टर्स इनटू द लोअर केस और इनटू द अपर केस. ठीक है. किसी भी लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बिकॉज द लोअर लेटर्स में A E I O U. ठीक है. AEIOU. यहीं पे मैंने एक एक लेटर चेक करा लिया और एक एक लेटर में बता दिया. इफ दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू तो ये देखो मैंने यहाँ पर इफ के अंदर CV प्लस प्लस इसको प्लस प्लस कर दिया. बस अभी जब लूप खत्म हो गया उसके बाद system dot out dot print letter means total number of lower case vowels are plus और यहाँ पे CVV. बस हो गया. That is only. Method close and this class close. Method close. अब यही काम मैं एक और लूप चला के भी कर सकती थी तो मुझे ये लूप फिर से चलाना होता एंड देन फिर ये इफ स्टेटमेंट फिर से लिखनी होती. बस इतना हो जाता. और इन दिस क्वेश्चन दे डिडंट मेंशन कि लोअर लेटर में कन्वर्ट करो या अपर लेटर में कन्वर्ट करो, है ना, या वोवेल्स काउंट करो. ऐसा भी नहीं है. वोवेल्स काउंट करो होता तब तो मीन्स मुझे अपर वाले वोवेल भी काउंट करने हैं, लोअर वाले वोवेल भी काउंट करने. ओके. तब उस केस में हम प्रोग्राम को या एरे को लोअर या अपर में कन्वर्ट करते, है ना. अभी अगर हम लोअर लेटर में लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि लोअर लेटर में कन्वर्ट करके फिर हम काउंट करेंगे तो जो यूजर ने जो अपर में डाले थे वो भी लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑलवेज. ये देखो वॉइड में अब एंटर अ कैरेक्टर. अब मैं कैरेक्टर डालती हूँ. मैंने डाला स्मॉल ए, ठीक, स्मॉल ई और P L. Now I'm giving small capital A. देखो capital A is also the vowel, but it should not be counted. ठीक है. Then देखो total number of the vowel कितना आया 2. Because lower case हमारा question क्या बोल रहा था? Lower case vowel you have to count, right? Only the lower case letters. तो ये A और ये E, ठीक है, दो ही है ना, तो that's why 2. P L A. These are not the vowel. In fact, this A is the vowel, although it is the vowel, but it is not lowercase vowel. Clear? Understood? By this way, we can make this program. Again, I'm showing you the coding. देखो ध्यान से. What I did, import वाली statement, class declaration, then method declaration, then स्कैनर और कैरेक्टर की एरे बनाई, देन CV एक काउंटर वेरिएबल लिया, है ना, एंड देन फॉर लूप चला के उसमें इनपुट करके वहीं के वहीं चेक कर लिया. तो मुझे लेटर फेच कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी. ठीक है. अगर मुझे लेटर फेच कराना होता तो मैं
इस लूप को कैसे चलाती वो देखो, वो भी मैं बता देती हूँ। ये फोर लूप, तो ये यहाँ पे, ये देखो इसके यहाँ पे आके ये देखो, है ना, यहाँ पे कंट्रोल वी फोर लूप, और ये जो भी एरे में लेटर्स आए हैं यहाँ पे उसे फैच कराएंगे। केयर ch इक्वल्स टू एरे ऑफ आई डॉट ये ऐसे सिर्फ कैरेट ऑफ आई की जो भी वैल्यू है वो ch में आएगी, और फिर यहाँ पे ch इक्वल इक्वल, फिर इस केस में हम ऐसे बनाएंगे ch इक्वल इक्वल, फिर यहाँ पे ch इक्वल इक्वल, फिर ये ch इक्वल इक्वल, ये इस तरीके से हम लूप लगा सकते हैं इनर लूप खत्म होने के बाद। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं इनपुट वाला लूप खत्म होने के बाद, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ द लूप। फिर उस केस में आपको ये एरे को एक एक लेटर्स को ch में डालना पड़ेगा और फिर यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज ओनली, इतना भी हम कर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, दैट इज ओनली द बेस्ट वे जो मैंने बताया, एक ही लूप के अंदर और उसी के अंदर यूज करके एंड डन। ये देखो I'm giving in the chat box. Yes, in Java, for an array having n elements, legal subscriptions are, देखो n एलिमेंट का मतलब होता है जीरो से अगर शुरू हुआ है तो n-1 होगा ना। वरद आर यू लिसनिंग? ये पता नहीं तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो अगर मैं जीरो से काउंट करूंगी तो 0 to 10 होंगे क्या? बताओ। नहीं, 0 to 9 होगा, मतलब कि n-1 होगा ना। Are you getting everyone? So the correct answer is B, 0 to n-1, because the n element है तो सब्सक्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी सबस्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, 0 to n-1, मतलब कि इतने एलिमेंट होंगे ना। Now the total size of the array is having a 25 elements of character. कितनी बार बताया, character is having the 2 bytes. Character occupies 2 byte in Java. तो 25 एलिमेंट हैं 2 बाइट के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हुआ, 50 बाइट्स। नन ऑफ दीज लिख के रखा है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 50 बाइट्स। 50 बाइट्स क्यों? बिकॉज 25 एलिमेंट्स of character data type. Character data type, each one character data type is occupying 2 bytes. So 2 bytes, so 2 bytes multiply by 25. ठीक है, then what is printed by the below statement? देखो 3 4 5, ये जो 3 आया है, everyone pay attention here, ये जो 3 आया है ये 0 एलिमेंट, ये 5 आया है वो 1 एलिमेंट, इंडेक्स पोजीशन 2, ये 3 and then it is 4, right? 0 1 2 3 4, तो प्रिंट num2, 2 पे क्या है 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 10, है ना, क्या प्रिंट हो जाएगा भाई 10। फिर इसके बाद में स्पेस नहीं, कॉमा है तो कॉमा लग जाएगा। देन num1, 1 पे क्या है 5, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 5, मीन्स 10, 5, ठीक, फिर से कॉमा। देन num3, 3 पे क्या है 12, देन 12, देन अगेन कॉमा,
ठीक है, देन num माइनस num 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ 2, तो num 2 पे क्या है अगेन 10, दैट इज, तो करेक्ट आंसर इज 10 5 12 10, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, 10 5 12 10, इट मींस बी, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ करेक्ट आंसर समझ गए भाई, नम 2 इंडेक्स पोजीशन पे जो होगा, देन नम 1 इंडेक्स पोजीशन पे जो होगा, देन 3 इंडेक्स पोजीशन पे जो होगा, देन 4 माइनस 2 का मतलब है 2, तो 2 इंडेक्स पोजीशन पे जो होगा वो, तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर वाले का भी बी करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाले का भी बी करेक्ट आंसर। नाउ दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड एरे डिक्लेरेशन, ये देखो ये कोई एरे डिक्लेरेशन नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो फंक्शन है, ये फ्लोट परसेंटेज ये भी नहीं हुआ, डबल मार्क्स मींस डबल डेटा टाइप की मार्क्स है ना, और ये यहाँ पर आया है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, तो मींस ये सही है। ऐसे हम नहीं लिख सकते, पहले हमें डेटा टाइप लिखना है, तो डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन आंसर, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देन द फिफ्थ वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, केयर ए 10 केयर ए न्यू, डिक्लेरेशन बोला है, देखो डिक्लेरेशन अभी अभी हमने डिक्लेयर किया प्रोग्राम में, केयर ए न्यू केयर 10, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये इनिशियलाइजेशन है जो कि सही तरीका नहीं है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइजेशन होता है। एरे एलिमेंट की साइज मींस एरे की साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा यहाँ पे दिए जाते हैं, ओके नॉट हियर, और ये तो बिल्कुल गलत है, केयर ए 10, बिकॉज डिक्लेरेशन, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। Yes.